Oh, hello everyone. In today's video, I'll take the method of manufacture of butter. As you can see in the screen, there is a flow diagram of method of manufacture. You can make butter from either from the milk or from the cream. If we take milk, we grate, weighing, sampling, and testing. Similarly, grading, weighing, sampling, and testing are done for the cream also. If we prepare butter from the milk, we preheat it at 35 to 40 degrees centigrade, then separation by the method of centrifugation, we get cream. After getting cream, standardization is done for 35 to 40 degree 40% fat. Then pasteurization is done at 82 to 80 degrees centigrade for no hold, or we can do vesication. If we take cream for the preparation of butter, we can see again the flow diagram. If we prepare butter from the cream, we do the neutralization, and again the same process, standardization, pasteurization, or vesication. Cooling, we can do the direct process. The cooling is done for 5 to 10 degrees centigrade, then aging at 5 to 10 degrees centigrade, churning, washing, salting, and working, and packaging and storage at minus 23 to minus 29 degrees centigrade. Or you can see after pasteurization or vesication, we do the cooling at 20 to 22 degrees centigrade, then ripening at 20 to 22 degrees centigrade, and again the process, the aging, churning, washing, salting, and working, and packaging and storage. So this is the flow diagram for the preparation of butter. I'll take the process in detail, और जो बीच के जो steps हैं उनको डिटेलिंग करते हुए आज हम चलेंगे. तो फ्लो डायग्राम में हमने देखा था कि रिसीविंग ऑफ मिल्क और क्रीम, रिसीविंग के बाद उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं, सैम्पलिंग एंड ग्रेडिंग करेंगे. ग्रेडिंग के लिए का पर्पस जो होता है मेनली टू डू द पेमेंट टू द मिल्कमैन फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी. सो cream is graded on the same principle as of cream. That means by the examination of smell, taste, appearance, touch, acidity, and sediment. Cream for butter making is graded with the grades of butter that can be made from it. There are first grade cream, second grade cream, and reject grade cream. Okay, first grade cream, which is sweet or slightly sour. Second grade cream, sour and coagulated. And reject grade cream, markedly sour and fermented. Okay, so नेक्स्ट जो हमने आगे इसमें पढ़ा था, आगे जो इसमें स्टेप आया था, जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो मैं आपसे लूंगी. देन वी डू द सैम्पलिंग, वेइंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग फॉर फैट, सॉलिड नॉट फैट, एसिडिटी, है ना, जो भी उनके स्टैंडर्ड्स मेथड्स हैं उनके अकॉर्डिंग. देन प्री हीटिंग इज डन, सेपरेशन करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगल मेथड से, न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रीम, ये सब हमने क्रीम में पढ़ा है. तो जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द
कूलिंग एंड एजिंग ऑफ क्रीम। ठीक, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्रीम इज कूल्ड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, और जो उसकी एजिंग की जाती है उसको लो टेम्परेचर पर होल्ड करते हैं फॉर फ्यू आवर्स, जिससे कि इट विल हेल्पफुल टू मेक चर्निंग पॉसिबल। The cream will not churn until the butterfat in the fat globules has at least partially solidified। ठीक है, यानी कि जब वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे फैट ग्लोब्यूल्स तभी क्रीम को चर्न करेंगे। अगर इनसफिशिएंटली सॉलिड हैं और अगर वी डोंट गिव द प्रॉपर कूलिंग एंड एजिंग, तो क्या होगा? It results in the fat loss in the buttermilk will be excessive, है ना? तो फैट लॉस ज्यादा हो जाएगा बटर मिल्क में, और हमको जो बटर मिलेगा which that will be unsatisfactory and with the weak body। ठीक, तो अगर हम इंडियन कंडीशंस की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कूलिंग एंड एजिंग is preferably be 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम फ़ारेनहाइट में लेंगे तो इसको 41 to 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, if we cool the cream to abnormally low temperature and aging at near about the same, it results in the fat globules so firm that they coalesce with each other during churning। ठीक है, और क्या होगा? जो चर्निंग प्रोसेस है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। ठीक, और इसी तरह से अगर हाई कूलिंग करेंगे एंड एजिंग टेम्परेचर तो शॉर्टन द चर्निंग पीरियड, yield large fat losses in buttermilk and produces butter which has soft body। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखिए। लो कूलिंग एंड एजिंग टेम्परेचर प्रोलॉन्ग द चर्निंग पीरियड, डिक्रीजेस फैट लॉसेस एंड प्रोड्यूस अ फर्म बॉडी। ठीक है, विच इज सेटिस्फैक्ट्री। एजिंग पीरियड should be at least 2 to 4 hours and preferably it should be 15 to 16 hours, that means overnight आप रखिए for the aging। ठीक है, और एजिंग में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फैट इन द फैट ग्लोब्यूल्स शुड बी सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटेड। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम एजिंग के लिए ओवरनाइट रखेंगे तो जो क्रिस्टलाइजेशन है फैट ग्लोब्यूल्स का क्रिस्टलाइजेशन होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कूलिंग एंड एजिंग क्रीम डिपेंड्स अपॉन द composition of fat, size of fat globules, fat percentage of cream, period of aging, temperature of churning and acidity of cream। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखने के पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए, बुक से पढ़ो। और देयर इज अ टर्म शॉक कूलिंग ऑफ वार्म क्रीम विथ आइस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रॉपर फैट क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, सब्सिक्वेंट टेम्परेचर राइज ड्यू टू लेटेंट हीट, inexhaustive churning and an unsatisfactorily weak body butter। ठीक है, तो शॉक कूलिंग नहीं करनी है। कूलिंग और एजिंग प्रॉपर टाइम और टेम्परेचर के लिए हमको कूलिंग और एजिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज द ripening of cream। Ripening means the fermentation of cream with the help of desirable starter cultures। ठीक है, और फर्मेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है उसमें? डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, एंड इन डेयरी इंडस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन इज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन और सारिंग ऑफ मिल्क। द ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करेंगे राइपनिंग ऑफ क्रीम की, तो क्या है? टू प्रोड्यूस बटर विद अ प्लीजिंग
कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर, अरोमा, है ना, एंड लो फैट लॉस इन बटर। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं राइपनिंग ऑफ क्रीम के, कि एक तो जो एक प्लीजिंग फ्लेवर और अरोमा होता है बटर का वो मिलेगा, और फैट लॉस जो है वो बटर मिल्क में कम होएगा। ठीक है, तो राइपनिंग ऑफ क्रीम, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी टेक स्टैंडर्डाइज्ड पास्चराइज्ड एंड कूल्ड क्रीम। टेम्परेचर शुड बी 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में अगर हम लें तो 68 to 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। और इसमें हमने स्टार्टर कल्चर ऐड करेंगे, बटर स्टार्टर कल्चर विच कंटेन, अब ये चीज, ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिए कि बटर स्टार्टर कल्चर कंटेन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसर्स। कौन कौन होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस, टुगेदर विद अरोमा प्रोड्यूसर्स। अरोमा दैट मीन्स डाइएसिटाइल, है ना। तो डाइएसिटाइल प्रोड्यूसर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, स्ट्रेप्टोकोकस डाइएसिटाइल लैक्टिस, ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवोरम एंड ल्यूकोनोस्टॉक डेक्स्ट्रेनिकम। ठीक, इनको ऐड करेंगे, बटर स्टार्टर कल्चर को ऐड करेंगे कितने में, एट 0.5 to 2.0%। थॉरोली मिक्स करेंगे और क्रीम को इंक्यूबेट करेंगे एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 16 आवर्स। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं राइपनिंग ऑफ क्रीम की। राइपनिंग ऑफ क्रीम में के लिए जो प्रॉपरली पास्चराइज्ड और कूल्ड क्रीम है उसमें बटर स्टार्टर कल्चर ऐड कर रहे हैं, उसे इंक्यूबेट कर रहे हैं हम 21 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फॉर 15 to 16 आवर्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात की थी कि अभी आपने टर्म सुना था अरोमा प्रोड्यूसर्स, डाइएसिटाइल, है ना। तो डाइएसिटाइल का क्या रोल है, इट गिव्स द टिपिकल फ्लेवर ऑफ बटर। ठीक है, डाइएसिटाइल और कुछ the small content of flavor comes from the acetic acid and propionic acid also। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूं कि देयर इज नो डाइएसिटाइल इन स्वीट क्रीम, ये याद रखिएगा। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे कि जो फ्लेवर बटर में कहाँ से आ रहा है, तो दैट इज फ्रॉम द डाइएसिटाइल। ठीक है, ये याद रखेंगे, और स्वीट क्रीम में डाइएसिटाइल प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना। अब यू कैन सी द टेबल, correlation of flavor intensity of butter with its diacetyl content। इस टेबल में आप देख रहे हैं diacetyl content in butter and flavor intensity। तो if diacetyl is not present, तो butter is flavorless। If it is 0.2 to 0.6 ppm, butter has mild flavor, and if it has 0.7 to 1.5 ppm of diacetyl content, butter is butter contains the full flavor। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ करके अच्छे से इसको याद रखो। नेक्स्ट टर्म इज द सिंथेटिक फ्लेवर। ये तो हम बात कर रहे थे अभी कि वी ऐड द बटर मिल्क, जिसमें कुछ स्टार्टर कल्चर्स हैं, है ना, तो उसके थ्रू हम इसकी राइपनिंग करते हैं, क्रीम की राइपनिंग कर रहे हैं। बट समटाइम्स द क्रीम राइपनिंग जो है वो एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं कि कुछ सिंथेटिक फ्लेवर्स भी ऐड किए जाते हैं। These are mixed with sweet cream butter during the working process to impart the characteristic flavor of ripened cream butter to the finished product। ठीक है,
लेकिन ये भी एक जो सिंथेटिक फ्लेवर्स हैं वो इंटायरली सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट नहीं देते, बिकॉज such butter has somewhat harsh, unnatural aroma, lacks the pleasing, mellow, uniformly blended aroma of ripened cream butter, and aroma lacks permanence also. ठीक है, तो एक तरीका है कि हम बटर के फ्लेवर को इम्प्रूव कर सकें, इट इज टू इंक्रीज द सिट्रिक एसिड कंटेंट ऑफ क्रीम और मिल्क बिफोर फर्मेंटेशन। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अरोमा को अगर ज्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड कंटेंट को हम इंक्रीज करें। नेक्स्ट पॉइंट इज churning. Churning of cream, that is agitation of cream at suitable temperature until the fat globules adhere, forming larger masses until a complete separation of fat and serum occurs. ठीक, तो क्या करेंगे, क्रीम को हम चर्न करेंगे और जिससे कि फैट ग्लोब्यूल्स एक दूसरे के साथ एडहर होकर के एक कॉम्पैक्ट मास बना लेते हैं और फैट और सिरम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। दिस इज नोन एज द churning. ठीक, so there are different factors which influence the churnability of cream and body of butter. These different factors are chemical composition of fat, size of fat globules, viscosity of cream, temperature of cream at churning, fat percentage of cream, acidity of cream, load of churn, nature of agitation, speed of churn, and pre-churning holding temperature. So these are different factors which influence the churnability of cream and the body of butter. So now I'll take all these factors one by one. First one is the chemical composition of fat. तो अगर हम मिल्क फैट की बात करेंगे तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूमरस काइंड्स ऑफ फैट्स। ठीक है, अलग अलग तरह के ग्लिसराइड्स हैं विच हैज वेरियस काइंड्स ऑफ मेल्टिंग एंड सॉलिडिफाइंग पॉइंट्स। सो द फैट विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स आर नोन एज द सॉफ्ट फैट्स एंड एग्जाम्पल्स tributyrene, olein, ठीक, and the fat with high melting points are known as hard fats like stearin, palmitin. To increase in the proportion of soft fats shortens the churning period. ठीक, और इससे क्या होगा, it results in the firmness of butter, diminishes the firmness of butter and increases the fat losses in buttermilk. तो अगर सॉफ्ट फैट के प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्टन्स होंगे, इंक्रीज होंगे, है ना, सॉफ्ट फैट्स अगर ज्यादा होंगे तो चर्निंग पीरियड कम हो जाएगा और जो बटर की फर्मनेस वो कम होगी और फैट लॉस जो है वो बटर मिल्क में ज्यादा होगा। ठीक, एंड वाइसी वर्सा। तो this fresh green succulent feeds increases the proportion of soft fats, while dry hard feeds increase the proportion of hard fats in the milk. अगर हम बात करेंगे साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स की तो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स चर्न विद डिफिकल्टी। ठीक है, एंड if the cream has the large fat globules तो it results in the readily churn। ठीक, तो higher the proportion of small size flat globules longer the churning time। ठीक, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और उससे क्या होगा कि जो फैट लॉस है वो बटर मिल्क में ज्यादा हो जाएगा। विस्कोसिटी की बात अगर हम बात करेंगे तो ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ क्रीम ग्रेटर द चर्निंग पीरियड। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर ऑफ क्रीम एट चर्निंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
इसमें हम तो if we talk about the Indian conditions, so optimum churning temperature ranges from 9 degrees centigrade to 11 degrees centigrade. Higher churning temperature causes shorter churning time, higher fat loss, weak body in butter. ठीक है, इस चीज को याद रखिए कि चर्निंग टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चर्निंग टाइम कम हो जाएगा, फैट लॉस जो है वो ज्यादा हो जाएगा और बटर जो है उसकी वीक बॉडी होगी। वीक बॉडी की वजह से क्या होगा, वॉशिंग डिफिकल्ट हो जाएगी और इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव कर्ड पार्टिकल्स प्रॉपरली। लोअर चर्निंग टेम्परेचर प्रोलॉन्ग्स द चर्निंग पीरियड। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे ऑप्टिमम चर्निंग टेम्परेचर के लिए तो इफ वी प्रोवाइड द ऑप्टिमम चर्निंग टेम्परेचर तो ऑप्टिमम चर्निंग पीरियड 30 to 60 मिनट्स, जिससे क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री फर्मनेस का बटर हमको मिलेगा। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर इज फैट परसेंटेज ऑफ क्रीम। तो हायर द फैट परसेंटेज ऑफ क्रीम, लोअर द चर्निंग पीरियड। ठीक है, तो ऑप्टिमम फैट लेवल of cream for churning as according to Hanziker is between 30 to 35%, और अगर एवरेज की बात करें तो 33%। ठीक है, if we talk about the fat percentage of cream as according to Indian research, it is 40% for cows and 35% for buffaloes. ये परसेंटेज को, इन पॉइंट्स को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़ करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्टर इज एसिडिटी ऑफ क्रीम। सो sour cream churns more rapidly in comparison to sweet cream. The next factor I am taking in this video is addition of butter color. ठीक है, तो बटर कलर हम क्यों मिलाते हैं, सो दैट कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, येलो कलर की जो पर्टिकुलर बटर का येलो कलर होता है थ्रू आउट द ईयर बनी रहे फॉर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड कलर एडेड अंडर इंडियन कंडीशंस वेरीज फ्रॉम 0 to 250 milliliter or more per 100 kg of butter fat. Butter color should be harmless, non-toxic, free from off flavors, concentrated, permanent, oil soluble. Okay, and there are two types of butter colors. They are from the vegetable origin and from the mineral origin. तो vegetable origin colors के examples हैं annatto and keratin, and mineral origin color should be harmless, oil soluble, coal tar dyes, and they are mixed with the neutral oil. Okay, and the examples are yellow AB, benzene, azo, beta, naphthyl amine. Second example is yellow OB, orthotoluene, azo, beta, naphthyl amine. ठीक है, and the advantages are that they are more concentrated and permanent. These butter color should be stored in opaque, airtight containers at room temperature. That means 18 to 21 degrees centigrade. ठीक है, this is all about the different types of factors. तो आज हमने मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो डायग्राम पढ़ा और कुछ फैक्टर्स पढ़े जो कि विच इन्फ्लुएंस द चर्निंग ऑफ द क्रीम। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें चर्निंग डिफिकल्टीज पढ़नी है और सॉल्टिंग पढ़ेंगे, वॉशिंग पढ़ेंगे, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूंगी।
तब तक आप इस वीडियो को देखिए और थ्योरी जो है वो बुक से पढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिए हैं उनको आप लोग याद करिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि मैं बटर का जो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर है उसके नेक्स्ट पॉइंट्स लूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन and all the best for your exams, for your preparation. Thank you.